न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, ब्राल गोल्ड, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल उत्सव के अंतिम दिन बंगला बैंड की प्रस्तुति देखने उमड़ी भारी भीड़, मचा भगदड़, कई घायल। आसनसोल उत्सव में भगदड़ पर भाजपा मुखर, लगाया प्रबंधन कमेटी और प्रशासन की लापरवाही का आरोप, की कार्रवाई की मांग। तो क्यों ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसके लिए कौन लोग दोषी है? रेल पान में चंदवारी में चला प्रशासन का बुलडोजर, कई दुकान ढहा, दुकानदारों में मिला जुला असर। आसनसोल चितरंजन रोड पर हिंदुस्तान केबल्स के पास मिनी बस ने बाइक को मारा टक्कर, बाइक सवार जख्मी। HLG मोड़ के निकट आसनसोल के ADDA मैदान में चल रहे आसनसोल उत्सव का कल समापन हो गया। आखिरी दिन मशहूर बांग्ला बैंड फासिलिस द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसे देखने बड़ी संख्या में लोग यहां आए थे। इनमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। आयोजकों के अनुमान से ज्यादा भीड़ आ जाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, कई लोगों के सर फूट गए तो कुछ लोगों के हाथ टूट गए। काफी लोगों को छिटपुट चोटें भी लगी। इतना ही नहीं, वहां मौजूद बहुत से लोगों का कहना है कि उनके पास वैध टिकट होने के बाद भी उनको उत्सव स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस अवस्था के लिए उन्होंने सीधे तौर पर आसनसोल उत्सव कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे कई लोग आहत हुए। আপনি ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন? ঢোকার সময় কি ঝামেলা হয়েছিল? ঢোকার সময় কোনো সমস্যা? সময় ঢুকতে পারি না, তোর মধ্যে আসতে পারিনি গেট পর্যন্ত। আপনার নাম কি? অসীম কুমার সরকার। কোথায় প্রোগ্রাম? আমরা এখানে আসানসোল উৎসবেরই ফসিলসের প্রোগ্রাম দেখতে এসেছিলাম। সকালে টিকিট কেটেছি, সকালে টিকিট কাটার আমরা 11:30 থেকে লাইন দিয়েছি, তারপরও টিকিট পাওয়ার পরও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। তোমরা যোগাযোগ করেছিলে প্রশাসনের সঙ্গে বা আমরা ঢুকতে পারছি না এই বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে? বলার পরেও তো কোনো কিছু রিপ্লাই তো কিছু তো নেই না, বলার পরেও কোনো কিছু রিপ্লাই নেই। আর কি করা যাবে যে ভিআইপি লোকেরাও ঢুকতে পারছে না গেস্ট কার্ড পেয়েও। এখানে যে পরিমাণ ভিড় হয়েছে সেই পরিমাণ সুরক্ষা এখানে বন্দোবস্ত করেনি সংগঠন, যারা করছে আসানসোল উৎসবের, তারা সেভাবে সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেনি। ফলে কি হয়েছে, প্রচুর লোকের গেট খোলার সাথে সাথে সবাই ঢুকতে গেছে, তখন স্ট্যাম্প প্যাড অনেকে এটা হয়েছে, পড়ে গেছে, মাথা ফেটেছে, পা ভেঙেছে। ছোট বাচ্চারও আমি দেখলাম, আমি যখন এসেছি তখন দেখলাম একটা ছোট বাচ্চা মেয়ের মাথা ফেটে গেছে। পুলিশ তার উপরে লাঠিচার্জ করেছে। তার ফলেই এখন যিনি ভর্তি আছেন, আপনাদের যার সাথে দেখা করালাম, তিনি হচ্ছে আমাদেরই বৌদি, কল্যাণপুর হাউজিংয়েরই। হ্যাঁ, আমাদের বৌদি হয়, বড় বৌদি হয়। তার মাথা ফেটে গেছে, তার সেলাই পড়ছে, সেলাই হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন ডাক্তার আসছে, ডাক্তার দেখে ফার্দার। আরেকজনের চিত্রায় থাকেন, ওনার হাত ভেঙে গেছে। এখানে প্রোগ্রামটা দেখতে এসেছিলাম। প্রোগ্রাম দেখতে যে ভিড়ে নিয়ে যেতে মানে ধাক্কা মেরে দেওয়ার পরে পড়ে যাওয়ার পরে চোটটা। কতজন ঘায়ল হয়েছে এরকম? এখানে তো মোটামুটি আমি দেখলাম প্রায় 6টা হয়েছে। আচ্ছা, আপনার কে হয়? এটা আমার শাশুড়ি। वहीं इस घटना के बारे में आसनसोल नगर निगम के विपक्ष की नेता भाजपा नेत्री चैताली तिवारी ने अपना गुस्सा प्रकट किया। আজ কোথায় গেলেন মমতা ব্যানার্জি, পুলিশ প্রশাসন? এইভাবে যখন আমরা গরিব মানুষের স্বার্থে কম্বল বিতরণ করেছিলাম, তখন আমাদের উপরে কেস করে কত রকমভাবে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করা, আমাদের মধ্যে থেকে আমার হাজবেন্ডকে অ্যারেস্ট করা হলো, আমার ছেলেদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো, অনেক কিছু করা হলো, কিন্তু সেটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। আজ আসানসোল উৎসব, সেটাতে পয়সা রোজগারের স্বার্থে নিরীহ প্রাণের উপরে এইভাবে তারা খেললেন। তাদের উপর কি কোনো রকম পুলিশ প্রশাসনের কোনো দায় নেই? তাদের উপর কোনো কেস করার?
তাদের উপর যদি কোনো প্রেস না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জেলা বিজেপি নেতৃত্ব এটা থেকে নিয়ে বিরাট রকমের আন্দোলন করবে। भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी ने आज आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कल आसनसोल उत्सव में हुई अव्यवस्था को लेकर तृणमूल कांग्रेस तथा प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब भाजपा या अन्य कोई विपक्षी दल इस तरह की कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की चीजों को देखा जाता है। हर एक बारीकी पर नजर डालने के बाद ही कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है, लेकिन क्योंकि यह तृणमूल कांग्रेस का कार्यक्रम था, यहाँ पर प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान करने से पहले किसी बात का ख्याल नहीं रखा गया, जिसका नतीजा है कल बहुत बड़ी भगदड़ हो गई, जिस वजह से कई लोग घायल हो गए। उन्होंने मांग की कि आसनसोल उत्सव के आयोजकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन मामला दर्ज करे और इस घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच से ही काम नहीं चलेगा, इस भगदड़ के लिए जो भी दोषी है उनको सजा देनी होगी। उन्होंने कहा कि जो अव्यवस्था कल देखी गई, इतने ज्यादा लोगों को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर प्रशासन की तरफ से सही इंतजाम नहीं किए गए थे, जिस वजह से भगदड़ हुई, जिसमें प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 6 लोग घायल है, जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल है। उन्होंने घायलों का सही आंकड़ा जारी करने की मांग की। बापा चटर्जी ने साफ कहा कि उनको उत्सव से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उत्सव के आयोजकों को कल की भगदड़ की जिम्मेवारी लेनी होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री शामिल है, इसलिए वह जानते हैं कि पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने घायलों की वास्तविक स्थिति को भी जाहिर करने की मांग की। तृणमूल का शासन में पूरे राज्य में अव्यवस्था चल रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र आप ले लीजिए, नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए। और ठीक उसी तरह का अव्यवस्था का चित्र हम लोग आसनसोल उत्सव में भी देखे, उस दौरान भी देखे। वहाँ पर ही एक के बाद एक दुर्घटना की खबर आती रही और सुबह से हम लोग देखे वहाँ पर ही मंत्री जी भी उपस्थित रहे, खुद विजिट करने गए, लेकिन उनकी उपस्थिति के बावजूद भी ऐसा घटना अगर घटता है, ठीक है, और माने इतना अव्यवस्था इस एरिया में, इस क्षेत्र में कि माने सोच नहीं सकते, ठीक है, कि वो किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए बीजेपी का या विरोधी किसी भी पार्टी का कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें इलेक्ट्रिक का, एम्बुलेंस का, वाटर का, ये सारा पेपर, ये सारा कागजात देखा जाता है, ग्राउंड कैपेसिटी कितना है वो देखा जाता है, उसके बाद हम लोग को परमिशन मिलता है। लेकिन ये तो तृणमूल का था, उन्हीं का सरकार, उन्हीं का पुलिस, उन्हीं का राज, क्या व्यवस्थित रूप से था, कितना आदमी का अरेंजमेंट था वहाँ पर, ये पूरा कोई ब्यौरा था या नहीं था? अगर था तो क्यों ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ है? इसके लिए कौन लोग दोषी है? हम लोग सीधी तरह से जानते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो लोग इस कार्यक्रम का उद्योक्ता है, जो लोग नेता मंत्री लोग इसके साथ हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन कड़ा से कड़ा पदक्षेप ले। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होने पर लेते हैं, उसी तरह का एक कड़ा से कड़ा पदक्षेप वो लोग ले, ताकि समाज में बांटा जाए कि प्रशासन निष्पक्ष है। और कल प्रशासन का भी फेलियर देखे, क्योंकि प्रशासन में भी हम लोग देखे कि उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था, लाइन करवाने से लेके जिस तरह का व्यवस्था, जिस तरह का पुलिस फोर्स प्रेजेंट रहने का जरूरत था, वो भी नहीं था। और लास्ट तक जब आदमी लोग गिर रहे, पड़ रहे हैं, वहाँ पर ही भगदड़ मची हुई है, उस समय तृणमूल के कार्यकर्ता को देख रहे हैं लाठीचार्ज कर रहे हैं, उसमें घुस के डंडा चला रहा है, लाठी चला रहा है। मैंने इस तरह का बर्बरतापूर्ण आचरण आज तक आसनसोल नहीं देखा। और उत्सव तृणमूल करे, लेकिन उस उत्सव में अगर एक बूंद भी खून गिरती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो लोग उत्सव का आह्वायक हैं उन लोगों को लेना पड़ेगा, और उन लोगों को संज्ञान लेते हुए प्रशासन कड़ी से कड़ी पदक्षेप। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन,
हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसंसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की तरफ से सोमवार की शाम आसनसोल उत्तर थाना का घेराव किया गया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता एक जुलूस के शक्ल में थाना के सम्मुख पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। यह थाना घेराव आंदोलन रविवार की शाम आसनसोल उत्सव के दौरान हुए हंगामे और भगदड़ जैसी स्थिति के विरोध में की गई। अपुष्ट खबरों के मुताबिक इस दौरान 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उत्सव के दौरान कल एक संगीत कार्यक्रम रखा गया था और इसके लिए टिकट भी बेचा गया था, लेकिन टिकट खरीदने वालों ने आरोप लगाया कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने धक्के मार के निकाल दिया। इस दौरान ही हंगामा हुआ था और भगदड़ जैसी स्थिति में कई लोग घायल हो गए। बहरहाल बीजेपी ने इस घटना के लिए प्रशासन, पुलिस और तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हुए शनिवार की शाम को आसनसोल उत्तर थाना का घेराव किया। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमिताभ गोराई और पार्टी जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी के नेतृत्व में घेराव किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया तथा नारेबाजी की गई। उन्होंने मांग की कि घटना के लिए जिम्मेवार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए। খাকি উর্তির ওপর মানুষের ন্যূনতম বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসটাকে রাখুন, সেই ভরসাটাকে রাখুন, নয়তো এমন দিন না আসুক যে এক শ্রেণীর পুলিশের অন্দরে বিদ্রোহ করুক আর পুলিশের যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমটাই ভেঙে যাক, এটা আমরা চাই না। আর আপনারা যদি প্রশাসন না চালাতে পারেন, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে লিখিত দিন, আমি জেলা সভাপতি হিসাবে গ্যারান্টি নিচ্ছি আপনাদের থেকে ভালো প্রশাসন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা চালিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেবে। তাই আপনাদের কাছে আবেদন, আবারও আবেদন, যা ঘটেছে সেটা যা গেছে তা যাক বলে ভুলে গেলে চলবে না। যা ঘটেছে দোষীদের শাস্তি আমরা চাইছি। আর আমি আগেও বললাম
7টা মোর্চা আমাদের আন্দোলন করবে, এক এক দিন রোজ আন্দোলন করবে, দরকার পড়লে থানা বন্ধ থাকবে, সেই ব্যবস্থা আমরা নেব। आसनसोल के रेलपार इलाके के कसाई मोहल्ला चांदमारी में स्थित ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए ब्रिज के दोनों तरफ की 23 दुकानों को आज तोड़ दिया गया। इस बारे में स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन से दुकानदारों की बात हो गई है। आसनसोल उत्तर के विधायक तथा इलाके के बोरो चेयरमैन की मौजूदगी में यह तय हुआ है कि जिन दुकानों को तोड़ा जा रहा है उनको यहीं फिर से बना दिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद दुकानों को तोड़ने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए PWD की तरफ से नक्शा भी बना लिया गया है और कुछ राशि भी सैंक्शन की जा चुकी है। हालांकि कुछ दुकानदारों का कहना था कि विकास के नाम पर उन्हीं के दुकान को क्यों तोड़ा जा रहा है, जबकि घाटी गली या अन्य इलाकों में भी रास्ते बेहद संकरे हैं, लेकिन वहां पर किसी को दुकान को तोड़ा नहीं जा रहा है। ये ब्रिज बन रहा, ब्रिज का जो है रास्ता को ऊंचा करके चौड़ा करके बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो है ये चौड़ीकरण करने के लिए रास्ता दोनों साइड का जो है दुकान को तोड़ करके चौड़ा किया जाएगा और साथ के साथ दुकान को बना करके देने का वादा है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। PWD से बात हुआ, मंत्री साहब से बात हुआ, सारा प्रशासन से बात हुआ हम लोगों का कि ठीक है अभी हम लोगों को डिमोलिश करने दीजिए, हम लोग आप लोग को दुकान बना करके देंगे। इसी बुनियाद पर हम लोग तैयार भी हुए, तोड़ा जा रहा है। ये नया जो है ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज का लेके दोनों तरफ 50 फुट पे जो जमीन पे अनलीगल अवैध किस्म से जो बना हुआ दुकानें था उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और कहने का मेरा मकसद है कि जब अवैध किस्म से इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ी है, सरकार को ज़रूरत पड़ी है ले, लेकिन मेरा कहना है कि सामने में आपको यहाँ पे घाटी गली है, उसके बाद इस तरफ में जो है बूधा के पास से अघोरी पाड़ा पूरा चले जाइए, उस तरफ में जगह है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ पे चौड़ा करने का एक ठो गाड़ी जाएगा, एक ठो रिक्शा नहीं निकल सकता। आप इसको तो इतना चौड़ा रहते हुए भी आप इसको कहते हैं कि इस तरह से, उसको तो गवर्नमेंट से कहा गया है और जो हमारे MLA साहब थे और हमारे काउंसलर साहब कि भाई आप लोग को इसके मुआवजा में दुकान बना के दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सामने तो आ नहीं रहा, टूट रहा और कोई नहीं है, ना MLA साहब है ना आपका कॉर्पोरेशन वाले काउंसलर है। कितने दिनों से थे आप यहाँ पे? हम लोग, अरे भाई हमारी पैदाइश जो है जब से हम यहीं के हैं। हालांकि इस बारे में उप मेयर वसीमुल हक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आदेश है कि विकास जरूर करना होगा, लेकिन किसी को बेघर या बेरोजगार करके नहीं। इसलिए जिनकी भी दुकानें तोड़ी जा रही है उनको वहीं पर दुकान बनाकर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे BNR इलाके में जिन दुकानों को तोड़ा गया था उनको BNR मोड़ पर जो पहले से ही दुकानें बनी हुई थी वह दी गई। जब चौड़ीकरण का काम हो रहा है, आप नेशनल हाईवे को देख लीजिए, जहाँ भी जाइए, रेल में जाइए, जहाँ भी जाइए, जब कुछ डेवलपमेंट होता है तो कुछ नुकसान होता है, लेकिन उसका भरपाई भी किया जाता है। ठीक उसी पद्धति में ये जो पुल का चौड़ीकरण किया जा रहा है, रास्ता चौड़े होगी, वहाँ कुछ दुकान सामने पड़ रहा था। उन लोगों के साथ में हमारा बोरो चेयरमैन मंत्री साहब मीटिंग करके उन लोग को बोले हैं कि आप लोग का व्यवस्था कर दिया जाएगा और इस बात को उन लोग को अल्टरनेट उन लोग का एक व्यवस्था दिया जाएगा कि बेरोजगार भी नहीं हो। ये आप सभी को जानते हैं कि पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है और जिसका नेत्री हम लोग का ममता बनर्जी है, जो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए सोचती है। कोई जात, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक रंग, निर्वाचन के समय में सब अपना अपना सियासत है, लेकिन आज जो काम उनका है ये पूरे देश को एक दिशा दिखा रहा है। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल।
इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। ब्राल गोल्ड लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। आभूषण के एडवांस बुकिंग करें और मेकिंग में पाएं 25% की छूट, साथ ही विवाह के लिए खरीदारी पर अलग से 20% की छूट। तो देर किस बात की, जल्द आए ब्राल गोल्ड, आसनसोल के प्रतिष्ठित आभूषण शोरूम, नियर एजी चर्च स्कूल, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल चितरंजन रोड पर हिंदुस्तान केबल्स DAV स्कूल के पास सोमवार सुबह एक लापरवाह मिनी बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बस की टक्कर से बाइक सवार का बायां हाथ टूट गया। सिर की चोट इतनी गंभीर थी कि टाके लगाने पड़े। साथ ही अस्पताल सूत्र के मुताबिक शरीर के विभिन्न हिस्सों में कट लगने के कारण काफी रक्तस्राव हुआ है। रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। घटना को देखते हुए आक्रोशित भीड़ ने कुछ देर के लिए हिंदुस्तान केबल्स रोड को जाम कर दिया। हालांकि कार्यालय समय, विद्यालय समय को ध्यान में रखते हुए अचरा पंचायत के उप प्रधान जयदेव महतो समेत स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व व पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति को जल्द ही सामान्य किया गया। ঘটনাটা ওই 9:40 কি 10টার মধ্যে টাইমে বাসটা পেরোচ্ছিল, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওই যে আমাদের হিন্দুস্তান কেবলস আসানসোল রোডে যে চিত্তরঞ্জন আসানসোল রোড, ওই আমাদের DAV স্কুলের পাশে 6 নম্বর রাস্তা আছে, ওইখানে কি বলে ওই ওভারটেকিং কেসে এটা ঘটেছে ঘটনাটা। এখন ছেলেটাকে আমরা রেস্কিউ করে ওই পিটাকেরি প্রথমে নিয়ে গেলাম। এখন বানপুরের একটা প্রাইভেট সংস্থায় ট্রিটমেন্ট চলছে। তো ওর মনে হয় হাতে কিছু ইনজুরি হয়েছে ভালো রকমই, ঠিক আছে, এবং বাইকটা নষ্ট হয়ে গেছে। কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে? ওই হিন্দুস্তান কেবলসের 6 নম্বর রাস্তা আছে না, ড্যাম্পের ওইখানটাতেই হয়েছে, DAV স্কুলের সংলগ্ন তো আমরাও যাতে বাসে মানে পাবলিক উত্তেজিত হয়ে গেছিলো, আমরা সেই সময় তৎক্ষণ পৌঁছে গেছি ওই এলাকার মানে স্পটের মধ্যে। তো মোটামুটি কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রেখেই আমরা বাসটাকে পুলিশের হাতে দিয়ে দিই। পুলিশ নিজে ওই নিজের হ্যান্ডওভার করে দিয়েছে। पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM अध्यक्ष दानिश आजीज के नेतृत्व में कल देर रात पश्चिम बर्धमान जिला मीम समिति ने आसनसोल के कुमारपुर इलाके में पार्टी के पश्चिम बर्धमान जिला मुख्यालय के समक्ष में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में MIMIM के उम्मीदवार की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मिठाइयां बांटी गई और पटाखे फोड़े गए। AIMIM के नेता और कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना चुनाव में पार्टी की बेहतरीन प्रदर्शन पर अपनी खुशी व्यक्त की। इस मौके पर इजाज अहमद, एडवोकेट मिराज आलम, सरवर इफ्तिकार आलम, अनवर हुसैन, नदीम अख्तर, शाहिद मंसूर, मुमताज अंसारी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद साजिद और कई अन्य जिला नेता मौजूद थे। आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। वाकई खुशी का मुकाम है कि तेलंगाना में जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, आज हम लोगों को कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मौके पे हम लोग खुशी का इजहार पेश कर रहे हैं। न्यूज प्रहर के विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज,
आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, ब्राल गोल्ड, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल,